A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल हैं. और इसके साथ सेशन के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ही तमाम ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित हैं. तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 26 अगस्त अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी important historic facts की. The very first one is associated with 1789 when the Declaration of the Rights of Man took place, अर्थात मनुष्य के अधिकारों की घोषणा करी गई थी. France National Constituent Assembly declared the Declaration of Rights of Man and of the Citizen on 26 August 1989. The declaration was drafted by Abbe Sayes and Marquis de Lafayette in consultation with Thomas Jefferson. The final draft of the article of the Declaration of Rights of Man and the Citizen was adopted on 26 August 1789 by the National Constituent Assembly when the French Revolution was at its peak, as the first step towards writing a constitution for France. The structure of Declaration of Rights of Man में शामिल थे 17 आर्टिकल्स जो अलग अलग प्रोविजंस के साथ डील करते थे. They talked of a nation of free individuals जिन सभी को equal protection प्रोवाइड किया जाना चाहिए under the law. The Declaration of Rights of Man and of Citizen underlined the value of individual liberty as well as democracy, क्योंकि it was highly inspired by the age of enlightenment that had occurred in Europe earlier. After this, a second and more lengthy declaration, जिसे बुलाया गया Declaration of Rights of Man and Citizen of 1793, was also written in 1793, परंतु इसे कभी भी औपचारिक रूप से अडॉप्ट नहीं किया गया. और अब इसके साथ let's have a look at the next fact which is associated with 1910 when मदर टेरेसा was born. अर्थात आज के दिन वर्ष 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था. वह एक अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन थी और मिशनरी थी. शी वॉज बोर्न इन द एरिया ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया और वह 1929 में भारत आ गई थी. यहाँ इन्होंने दार्जिलिंग में अपनी समाज सेवा की शुरुआत करी और उन्होंने बंगाली भाषा में कमांड प्राप्त किया so that she could interact with the local communities of the region. उन्होंने अपने कॉन्वेंट को भी स्थापित किया and she also taught in several missionary schools. वर्ष 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की जो एक रोमन कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन था that was run by over 4,500 nuns और यह तकरीबन 133 कंट्रीज में एक्टिव हो चुका था बाय 2012. इस कॉन्ग्रीगेशन ने उन लोगों की सेवा की who were suffering and dying of painful diseases like HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis. The missionaries of charity also established several outreach clinics throughout Calcutta, जहां गरीबों को मुफ्त में मेडिकेशन, ड्रेसिंग और खाना उपलब्ध कराया जाता था. The Missionaries of Charity Brothers was also later founded in 1963 and a contemplative branch of the Sisters was also established in 1976. By 1996, Mother Teresa operated around 517 missions in over 100 countries across the world. उन्हें उनके सभी contributions के लिए towards betterment of people in society रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया for peace and international understanding that is given for work in South or East Asia, and this award was given to her in 1962. यहाँ आप ये भी याद रखिएगा
कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज भी बुलाते हैं। इसके पश्चात उन्हें भारत सरकार द्वारा सिविलियन ऑनर पद्मश्री मिला इन 1962। यही नहीं, she also received Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in 1969. She later also received many other Indian awards such as the highest Indian civilian honor in 1980 जिसे भारत रत्न पुरस्कार बुलाया जाता है। वर्ष 1979 में she received the Nobel Prize for Peace for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitutes a threat to peace across the globe. और उन्हें formally beatified किया गया on 19th October 2003 and she was known by Catholics as blessed. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं आज का next fact, which is associated with 1975 when freedom fighter N.S. Hardikar had passed away. अर्थात आज के दिन N.S. हार्डिकर का निधन हो गया था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे। उन्होंने मेडिसिन में शिक्षा प्राप्त की थी फ्रॉम कैलकाटा, जिसके पश्चात ही वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। वह लाला लाजपत राय के संपर्क में आए और उनके घनिष्ठ सहयोगी बने। He became the secretary of the Home Rule League and he helped in organizing the Indian Workers Union of America. As office bearers of the Home Rule League, हार्डिकर ने लाला लाजपत राय के साथ यूएस सीनेट्स फॉरेन रिलेशंस कमिटी को एड्रेस किया था। इसके पश्चात वह प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पैम्फलेट called India a Graveyard was extensively discussed in several newspapers and journals. यही नहीं, वह मैनेजिंग एडिटर भी थे of the famous journal called Young India. उनके द्वारा किया गया सबसे यादगार कंट्रीब्यूशन माना जाता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तानी सेवा मंडल, जो बना था आफ्टर द कांग्रेस काकीनाडा सेशन इन 1923। परंतु औपचारिक रूप से हिंदुस्तानी सेवा मंडल की स्टार्टिंग डेट मानी जाती है जनवरी 1, 1924 और जवाहरलाल नेहरू बने थे इसके प्रथम प्रेसिडेंट। हिंदुस्तानी सेवा मंडल को बाद में रीनेम करके सेवा दल इसका नाम रख दिया गया था। द सेवा दल इज अ ग्रास रूट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके चैप्टर भारत की हर स्टेट में तकरीबन मौजूद हैं। इस दल ने सिविल डिसोबीडियंस के समय इन 1930 to 31 एक अहम भूमिका निभाई थी बाय ऑर्गेनाइजिंग mass picketing of shops and enrollment of new members in the Congress. N.S. Hardikar was also elected as the General Secretary of Karnataka Pradesh Congress Committee और उन्होंने एक मंथली जर्नल भी पब्लिश करवाया जिसका नाम था वॉलंटियर। अपने सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए वर्ष 1958 में he was awarded the civilian honor Padma Bhushan by the Indian government। और अब देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट which is associated with 2002 when the World Summit on Sustainable Development began in South Africa। अर्थात आज के दिन वर्ष 2002 में सतत विकास पे विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। It took place in South Africa from 26th August to 4th of September in 2002 और इसे अक्सर एक और नाम से बुलाते हैं that is Earth Summit 2002। ये आयोजित किया गया था टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ये हुआ था एग्जैक्टली 10 साल के बाद आफ्टर द फर्स्ट अर्थ समिट हैड बीन हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो इन 1992 और इसीलिए इसको अक्सर रियो प्लस 10 समिट भी बुलाया जाता है। इस समिट में एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि द जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। दैट वाज आल्सो द मेन आउटकम ऑफ दिस समिट। ये जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, परंतु एक सब्सटैंशियल मेंशन के साथ आया है और मल्टीलेटरलिज्म एज द पाथ फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन
contains targets and timetables for achieving Agenda 21. तो अब स्वाभाविक प्रश्न है कि फिर what is Agenda 21? तो ये एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसे भी अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट में जो कि रियो डे जनेरियो में हुई थी इन ब्राजील इन 1992। परंतु अक्सर लोग वर्ल्ड समिट 2002 को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ पुराने एजेंडास को ही दोहराया गया और कोई विशेष नया एजेंडा नहीं उठाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रॉपर कंसेंसस नहीं हो पाया अलग अलग मेंबर देशों के बीच। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस समिट प्रॉपरली। तो यूएस की एब्सेंस भी एक मेजर रीजन माना जाता है इस समिट के सक्सेसफुल ना होने के पीछे। और अब देखते हैं आगे what questions do we need to solve here today. The very first one is when did the Declaration of Rights of Man take place? अर्थात मनुष्य के अधिकारों की घोषणा कब करी गई थी? ऑप्शंस हैं A 1780, B 1785, C 1789 or is it D 1790? The next question is which prize is also called Asia's Nobel Prize? अर्थात किस पुरस्कार को हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बुलाते हैं? ऑप्शंस हैं ए पी बॉडी पुरस्कार, बी सैटेलाइट अवार्ड, सी रेमन मैग्सेसे अवार्ड और इज इट डी पुलित्जर प्राइज? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन था फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी? अर्थात हु वाज द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी? Names in the options are A. Annie Besant, B. Madame Blavatsky, C. Mother Teresa, D. Henry Steele Olcott. The fourth question is who had founded the Hindustani Seva Mandal in 1923? अर्थात किसके नेतृत्व में बनी थी हिंदुस्तानी सेवा मंडल 1923 में? ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी एन एस हार्डिकर, सी लाला हरदयाल, डी बी सी पाल अर्थात बिपिन चंद्र पाल। The fifth question is in which summit was the Johannesburg Declaration adopted? अर्थात जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन को किस शिखर सम्मेलन में अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शंस हैं ए अर्थ समिट 1992, बी अर्थ समिट 2002, सी 2012 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या ये है डी अर्थ समिट 2000। और अब आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है Where did the Earth Summit 2002 take place? अर्थात अर्थ समिट 2002 कहाँ हुई थी आयोजित? ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी पेरू, सी यूके या फिर ये है डी साउथ अफ्रीका। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें। With this have a great day, please stay safe and thank you so much to all of you.